Hello friends, welcome to today's session on security issues. Today we are going to take up the chapter of money laundering, and this is only the first part of money laundering. We will today cover the meaning or definitions of money laundering, the different processes or stages as well as different methods. And the next part will be on the effects of money laundering and how to combat money laundering. As you know, money laundering is part of your GS3 syllabus. It comes under security issues, and it's a very interesting topic. And almost every year or every alternative year in UPSC, one question is usually asked directly or indirectly from this chapter. Even if it is not asked directly, then under security issues, there is usually one point you can add on money laundering. Okay. So, just to come to the point directly, we are going to study money laundering. In short, we are going to call it ML. Before we understand money laundering, first we need to understand two related concepts. One is black money and the other is white money. Okay. So what is black money and what is white money? Most people think that black money is that money which is ill gotten. जोटा को भी illegal source रू आमे obtain करूछु आमे कहया कि सेटा black money, which is also correct. But this is a lay person's definition. As an UPSC or OPSC aspirant, you are supposed to have a broader or legal definition. And black money is not only those kind of money which are gotten from illegal sources. They can also be money which are collected from legal sources but undeclared to tax authorities. Means एमितिया खाली माने नहीं कि आमे चोरी करिकी करप्शन करिकी जो पैसा आणुचु सेटा ही केवल ब्लैक मनी. If you bring any money or you are earning money but you are not paying tax on it, even that can be called as black money. And what is white money? Obviously legal money and which is also declared to tax authorities. Okay, so if both these conditions meet, then we call it white money. So money laundering ro mane kono? The launder, see the term launder. Launder mane or laundry if you see. Okay, laundry mane kono? To wash something. एटा आमे को ना कि लुगापटा जहाँ भी अच्छी आमे लॉन्ड्री करिया था माने कौन सफा करिया. सो ब्लैक मनी को सफा करके जो व्हाइट मनी कर दिया जाए ताको कहती मनी लॉन्ड्रिंग. वेरी सिंपल डेफिनेशन. But if you want to in exam hall, you cannot write this kind of definition. This is only for your own understanding. What will we write? That as per Prevention of Money Laundering Act or PAMLA, black money or money laundering is the process of converting or projecting proceeds of criminal activities as legal money. Okay, so this is one official definition of money laundering. Okay, so what is the status of money laundering? Do you know? Money laundering ro extent kete अछि, India रे kete, globally kete? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कही कि ग्लोबली 2.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी होची ब्लैक मनी. जस्ट इमेजिन 2.5% ऑफ एंटायर ग्लोबल जीडीपी इज ब्लैक मनी. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. बट दिस इज ऑल्सो कंपेयर्ड नथिंग कंपेयर टू द लेवल ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया. एक्चुअली इंडिया रो ब्लैक मनी और इंडियंस मानकर ब्लैक मनी रो लेवल केते तार पर्यंत ऑफिशियल किसी एक्सटेंड है ना. इनफैक्ट गोटे पार्लियामेंट्री पैनल बसी से दायित्व दिया ब्लैक मनी उपरे. पार्लियामेंट्री पैनल ऑन ब्लैक मनी से माने भी एक्जाक्टली डिस्कवर कर पारे केते अमाउंट अच्छी. बट जड़े आगु सीबीआई डायरेक्टर कहते कि अराउंड $500 बिलियन इंडियन मानकर मनी हूँ बाहर स्विस बैंक मानकर अच्छी. Again, these are not official estimates. If you see, some economists have also said that up to 80% of Indian economy is also parallel economy or which is not declared to the tax authorities. यहाँ पर tax payment हो नहीं. Okay, so we don't know what is exactly the level of
or the status of money laundering in India. But you can write one statistics that as per a global report, India is ranked 3 in trade related money laundering and ranked 8 overall in money laundering or black money generation. Okay, this is one official statistics. Now let's move on to the next point. The money laundering करंती केमितिया. Okay, what is the process? What is the process of money laundering? So broadly, money laundering process or stages will be in 3 stages. First is placement, second is layering, third is integration. Now ये सबू जिनस सब पार्ट बुझिया तुम एथि दरकार बिकॉज एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और इवन मे बी ORS officers, some kind of officer who is linked to customs department, tax department, taxation department, you are supposed to be able to understand that what are the different stages through which people do these kind of money laundering, so that you will be able to stop it. So this is the purpose of understanding what are the different stages. So money laundering ro tinita stage achi. First hala placement, second is layering, third is integration. You can remember these stages as mnemonic is PLI scheme gote achi. सेमिता से स्कीम रे ना रे मन रख दियो प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट? प्लेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट इज ऑल्सो द रिस्कीएस्ट स्टेज, सब बेसी रिस्की एटा. बिकज ये स्टेज रे कौन हम डायरेक्टली कैश कि अदर इक्विवेलेंट को आम डायरेक्टली इंजेक्ट करूचु into the monetary system. You are injecting it into the monetary system. Means suppose you have some black money, how you are going to introduce it into the monetary system? तो तुम्हें बहुत सिंपली तुम बैंक अकाउंट ताको डिपोजिट प्रथम करिया को आसियो को वे रे भी हो. तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिपोजिट इट इन बैंक अकाउंट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लेसमेंट. और सपोज यू आर गिविंग दैट मनी टू कैश टू सम अदर पर्सन एंड यू आर सेइंग कि भाई तुम्हें जाइए एटा डिपोजिट कर दियो बैंक अकाउंट रे, दैट इज आल्सो. So this is the first stage. These are all known as placement. But कथा होची प्लेसमेंटा रिस्की बिकॉज ए स्टेज रे भी जदि जने चाहिबो एटा को धरा माने एटा धरा पड़ी जिवो. ठीक अछि. देन नेक्स्ट इज लेयरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेयरिंग? आमे लेयर पर लेयर करियो ब्लैक मनी रो. लेयर केमतिया करिवु ना से मनीटा को बहुत सारा ट्रांजैक्शन थ्रू रे आमे राउट करिवु. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेयरिंग? द पर्पस ऑफ लेयरिंग होची कि जिनसटा एते कॉम्प्लिकेटेड हे जिवो कि टैक्स अथॉरिटी माने जानी पारिबेनी कि एक्चुअली मनीटा कोठू आसला एंड कहा को जाइछि. सो लेयरिंग रो पर्पस होची जान जणे आमे ट्रांजैक्शन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देबा सो दैट टैक्स अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ताको धरि परिबो नाही. तो केमिति लेयरिंग कराबो? फॉर एग्जांपल वायर ट्रांसफर और थ्रू कॉम्प्लिकेटेड इनवॉइसेस, डिफरेंट रिसीप्ट्स, ये सब जिनस बाहर करके आमे कहबा कि ये माने सपोज ये किसी अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी अच्छी यहाँ को आम यही गुड्स और सर्विस को किनिया को खर्च कलु. पुणी से कंपनी और से लोक आउ क्या देकी से कह कि एठू आम गुड्स और सर्विसेस आणलु तार पेमेंट एटा एमती करी फाइनाली से मनी पुणी से लोक पाखे पहुँचीज. तो ये जो राउटिंग है ये राउटिंग टाक कहती लेयरिंग. So layering is the most complicated and it is the most important stage of the money laundering process. एठी सब डिफरेंट अकाउंटेंट्स मानकर काम आसे. बहुत सारा अकाउंटेंट्स मानक रिक्रूट करा जाए सो दैट दीज मनी लॉन्डर्स कैन लेयर देयर ब्लैक मनी. एंड द थर्ड एंड लास्ट पार्ट इज इंटीग्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन रो माने हला ब्लैक मनीटा जतला राउट हेकी आसियो फाइनली इट इज इंटीग्रेटेड इनटू the formal financial system. Formal financial system means white money. So why will we do this? Because finally हमको formal financial system रो ही white money को use करियार अछि to purchase anything, invest whatever, to buy or to invest. You can also invest part of this money again into black money. So this is the last stage in which we are going to use the black money. सो आमे तो ये सब प्लेसमेंट कलु ताको लेयर कलु फाइनल तो यूज तो किसी करवा ना से फाइनल यूज टाक कहती इंटीग्रेशन. सो फॉर एग्जांपल जस्ट विथड्रॉइंग योर ब्लैक मनी फ्रॉम योर अकाउंट. ओके, नॉर्मल विथड्रॉ कर परियो, वायर ट्रांसफर करी काहा को पेमेंट कर परियो. ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी इज द डिफरेंट मेथड्स हाउ पीपल यूजुअली डू मनी लॉन्ड्रिंग.
So the first and foremost method is known as hawala. हवाला ये सब मूवीज रे बहुत शुणी कि हवाला ट्रांजैक्शन होची बोली न्यूज रे भी पढ़ी हवालार माने कौन सी ट्राई टू अंडरस्टैंड हवालार लिटराली माने होची ट्रस्ट. So this is a trust based transaction, and the unique point of this transaction is that it is the transfer of money without the actual movement of money. मनी एक्चुअली मूव करियोनी बट फिर भी ट्रांसफर ऑफ मनी हो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड केमिति होची. सी या पे गोटे एलाबोरेट सिस्टम दरकार. सिस्टम केमिति दरकार. सपोज दिस इज इंडिया, ओके, एंड दिस इज यूएसए. सो हवाला जो माने करिवे से मानकर ना होची हवालादार. दीज आर द मनी लॉन्ड्रर्स, मेन मनी लॉन्ड्रर्स. तो एमाने होचंदी मीडियम. सपोज गोटे लोक को मनी लॉन्ड्रिंग करिया दरकार, दे विल कम एंड दीज हवालादार्स विल हेल्प देम. सो व्हाट विल हैपन इज दैट बेसिकली जड़े हवालादार इंडिया रे अच्छी एंड अनदर तार फ्रेंड और तार एजेंट ही इज इन सिटिंग इन यूएसए. सो दे हैव प्रीवियसली सेटअप अ सिस्टम जो थे कि ए लोक पाखे भी किसी कैश अच्छी, ए लोक पाखे भी किसी कैश अच्छी, ए लोक पाखे रुपीज रे कैश अच्छी, ए लोक पाखे डॉलर रे कैश अच्छी, बिकॉज यूएस रे डॉलर चलुची. सो व्हाट विल हैपन दैट सपोज वन पर्सन हुज सन इज स्टडिंग इन यूएसए, से लोक आसिक कहला कि मोर पुओ पाखक मते पैसा पठाइबार अच्छी, मे बी तार कॉलेज एजुकेशन ही थाईपारे, किसी भी थाईपारे. जदि से बैंक थ्रो रे नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करिवो सेतरे बैंक किसी कमिशन रखिवो which might also be very high. So that person wants to avoid this kind of commission. कहा को मैं कमिशन दबू नहीं तो आमे कौन करूँ इनफॉर्मली हवालादार थ्रू रे पैसा पठेबू. सो व्हाट ही विल से कि ही विल गो टू ए हवालादार, a person that he knows can do this kind of thing, and से सपोज कहो कि these are suppose 10 लाख रुपीस मते ये पैसाटा पठाइबार अच्छी मोर ये फ्रेंड की मोर पुओ पाखक यूएस को. सो दिस पर्सन विल जस्ट फोन दिस पर्सन कि ए लोक ना ए लोकर पुओ जीव तुम पाखक, तो यू जस्ट पे देम दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड दिस 10 लाख रुपीज विल बी पेड बाय दिस पर्सन विद इन इंडिया टू द हवालादार. एंड दिस पर्सन जहाँ पाखे आगु किसी कैश अच्छी डॉलर रे, ही विल पे इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर टू हिज सन. एंड द ट्रांजैक्शन कमीशन फॉर हवालादार वुड बी मच मच लेस देन RBI or any other bank commissions. Okay, so this is win-win situation for both. Similarly, if any person wants to send money to India, so he will contact the havaladar in India. So this payment money will be paid here and transaction will happen here. So this is how through hawala black money can be transferred. Now what is the second method? Second method is known as shell companies. शेल रो सिंपल माने होची ओडिया रे खोल, ओके, जस्ट ए कवर जार भितर किसी जिनस ना. तो शेल कंपनी माने होचन सेमितिया कंपनी जो माने केवल ऊपर देखा जाउछन कंपनी ना रे अच्छी, बट एक्चुअली से माने किसी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज करूना. एक्चुअली से माने कंपनी नुहंती, जस्ट ऑन पेपर दे एग्जिस्ट. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग सच कंपनी? सो दैट यू कैन राउट योर मनी, इल गॉटन मनी थ्रू देम. सो आम कौन करूँ, सपोज आम गोटे XYZ कंपनी खोलू, ओके, आम पाखे बहुत ब्लैक मनी अच्छी, आम XYZ कंपनी को ये पैसाटा को देकी तांको अकाउंट रे डिपॉजिट ट्रांसफर करूँ एंड ये कंपनी गोटे आमको फेक रिसिप्ट दो कि ए बाबू सपोज आम पाखु आसले कंसल्टेशन आम तांकर कंसल्टेशन फी एति चार्ज कलु. सो एक्चुअली दिस वाज द मनी दैट यू गॉट फ्रॉम मे बी करप्शन एंड नाउ यू पेड दिस मनी टू दिस अकाउंट और कंपनी व्हिच यू हैव क्रिएटेड, और you know that this is a fake company, but this company is giving you fake receipts and then this company will show that this is our profit to the tax authority कि आमे कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड कलु, आमको एतिकी प्रॉफिट मिली से आमर एतिकी अर्न होइछि. सेमाने जहाँ प्रॉफिट कले सेटा तांकर बैंक अकाउंट रे अछि, से बैंक अकाउंट रु दे कैन यूज इट और गिव इट टू यू और दे कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यू. ओके, सो फाइनली यू गॉट योर ब्लैक मनी कन्वर्टेड बैक इनटू व्हाइट मनी. दिस इज द मीनिंग ऑफ शेल कंपनीज. ये भाया बहुत सारा कंपनीज अच्छी, स्पेसिफिकली बहुत सारा शेल कंपनीज अच्छी टैक्स हेवन कंट्रीज मानकर. टैक्स हेवन कंट्रीज माने होचंती से कंट्रीज जो मानकर डोमेस्टिक टैक्स रेट और इन जनरल टैक्स रेट होची इधर जीरो और वेरी लो, वेरी वेरी लो. फॉर एग्जांपल सेशल्स, मॉरिशस, these are considered as
टैक्स हेवेन्स। सो जो लोक मानकर बहुत एक्स्ट्रा ब्लैक मनी अच्छी से यही सब कंट्री मानकर जाई अकाउंट खोलिकी ब्लैक मनी डिपॉजिट कर दियंती बिकॉज से टैक्स बहुत लो रेट और जीरो रेट रे लगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड method is something known as round tripping. This will continue from the previous point. Suppose India रे जने लोक पाखरे बहुत ब्लैक मनी अच्छी, this is India and he wants to invest it in Indian stock market. बट कथा होची सी यदि एटा को इन्वेस्ट करिवो देन सेबी अच्छी, गवर्नमेंट अच्छी, से माने चेक करिवे कि ये लोक पाखरे एते पैसा कोठु आसला कि स्टॉक मार्केट रे एते टका किणुची, दे विल एंड मे बी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट ता ऊपर रेड मारियो। सो व्हाट दिस पर्सन विल डू कि सी से पैसाटा को बाहर को गोटे कंट्री को पठेद। सपोज दिस इज सेशल्स, टैक्स हेवन कंट्री, ये गोटे सेल कंपनी से खोलिए। सपोज एक सेल कंपनी ना हो सेशल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ओके, SCPL। SCPL कंपनी शो कर मे बी यांकर एम्प्लॉय भी लोकल एम्प्लॉय को से रिक्रूट करदे, बट तापर SCPL कह कि आमे एमतिया कंपनी जी कि इंडिया स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करूँ पैसा। वाई? बिकॉज हमको बेसी रिटर्न मिले, बिकॉज इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी। So they will use this person's money only black money to invest back in India, and setru jaha profit asla that will come back again to this Seychelles company's account. Then they will use that money to buy goods and services for this person or to further invest in other ventures in other companies. Okay, so this is known as round tripping. यार माने कौन राउंड ट्रिपिंग माने कौन? माने देखो ब्लैक मनी डा एक्चुअली गोटे कंट्री जोटा इंडिया थिला सेठू गोटे ट्रिप पूरा मारला सेशेल्स और एनी अदर टैक्स हेवन को। प्रथम ब्लैक मनी एमती गला पुणी रिटर्न कला एज इन्वेस्टमेंट, एंड दिस कैन बी FDI, बट यूजुअली दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FII, ओके, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज हॉट मनी। तो रैपिड माने बहुत सारा ह्यूज अमाउंट को आम स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करी केमी अल्प टाइम भितर एक्स्ट्रा पैसा अर्न करवा, तार मेथड हूँ राउंड ट्रिप। नाउ द नेक्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी is something known as participatory notes, or also known as P notes. Exactly participatory note कौन है? एटा इकोनॉमी क्लास रे पढ़ा हो, डोंट वरी, okay, this is a derivative, but just to understand what this means, participatory note basically एमिति गोटे इंस्ट्रूमेंट जहा थ्रू रे गोटे फॉरेनर और बाहरु, सपोज दिस इज US, बाहर जड़े इन्वेस्टर इंडिया रे इन्वेस्ट कर पारिबो इंडिया रो स्टॉक मार्केट रे विदाउट रजिस्टरिंग विथ सेबी। इफ यू नो दैट इफ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट दे विल हैव टू रजिस्टर विथ सेबी, बट आमर UPA गवर्नमेंट एट वन पॉइंट दे फ्लोटेड दिस डिवाइस पार्टिसिपेटरी नोट, जो थे कि एटा को एग्जेम्पशन कर दिया गला। सो इट इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड दैट पार्टिसिपेटरी नोट्स और P notes was created as an instrument to allow foreign investment into Indian stock market and investment of black money. So देखो नॉर्मल लीगल मनी इन्वेस्ट कले हेतरे किछि इशू नाही, आम स्टॉक मार्केट ही ग्रो करिवो, आम कंपनी माने ग्रो करिवे, बट दे आर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट टू चैनल और टू लॉन्डर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, ओके, and we will study in detail about participatory note in economics classes, okay. Next point of doing black money laundering is something known as structuring deposits. Structuring deposits. And the other name for this is known as smurfing. Okay. Actually, it is a cartoon series na aschi. So it is Smurfs, the Smurfs, if you have seen or not. Smurfs are very small kind of people. And what is the point of calling it smurfing? ମୁଁ ଏବେ ଯେବେ example ଦେବି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। If you might have noticed that during demonetization किसी लोग कौन कले सडनली जो डिक्लेयर होगा कि ब्लैक मनी सॉरी जो हायर डिनोमिनेशन नोट को बैन कर दिया जाइए, से यूजुअली ब्लैक मनी हायर डिनोमिनेशन नोट रे थिला, माने 2000 रुपीज नोट रे थिला, है ना। सो ए लोक माने 2000 और 1000 मोर एक्जाक्टली मन पड़नी। सो ए लोक माने कौन कहले आई थिंक 1000। सो व्हाट दे डिड वाज दैट एटा सडनली आनिक जदि आम बैंक अकाउंट डिपोजिट करिया गोटे सिंगल आम बैंक अकाउंट रे, सो दैट आम ए धरा पड़जा कि बैंक आमको पचार कि एत सारा पैसा तुम पाखर कुआडे आसला। सो ये लोक मैंने किसी लोक मैंने कौन कले से पाखे जी ब्लैक मनी थिला से बहुत सारा फ्रेंड एम्प्लॉई एंड किसी जी भी चिन्ह जाना लोक
छोट छोट अमाउंट रे स्मॉल अमाउंट रे ताको डिवाइड कर देले फॉर एग्जांपल से माने कहले कि सपोज हैंग ऑन अ सेकंड सपोज तांका पाखरे 10,000 रुपी अच्छी सो व्हाट दे विल डू इज कि 10,000 रुपी को 10 डिफरेंट पार्ट्स से ताको डिवाइड कर देले ईच ऑफ 1,000 रुपीज एंड एटा को 10 जन तांकर एमती फ्रेंड्स मान को दे कहले कि तुम्हें निज निज अकाउंट रे डिपॉजिट कर दियो या द्वारा कौन हबो सी 10,000 मे बी ए बिगर अमाउंट बट 1,000 इज ए लेसर अमाउंट सो बैंक एटा को क्वेश्चन करि पारे बट 1,000 रुपीज को क्वेश्चन करिवनी तो एई लोक माने जाई कि तांको अकाउंट रे डिपॉजिट कर देले केई डाउट करिवेनी कि कुआड पैसा आसला देन लेटर ऑन दे विल पे बैक टू द सेम पर्सन जति पैसा निचन ताको फेरे देबे सो दिस इज नोन एज स्मर्फिंग कि आमे गोटे लार्जर अमाउंट को स्मॉल अमाउंट रे डिवाइड करके लोक मान को दे दवा डिपॉजिट करियो another next method or sixth method is something known as cash intensive businesses cash intensive business कौन ना आमे एमिति गोटे बिजनेस और दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू शेल कंपनी बाय द वे बट स्लाइटली डिफरेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स आमे एमिति गोटे बिजनेस बाहर करिया और एमिति गोटे बिजनेस सेटअप करिया जो थरे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होतुवा एंड बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होतुवा एंड से आमे ब्लैक मनी को आनिकी इंक्लूड करी ताको लॉन्डर करी बाहर को देखे देवा कि एटा होची व्हाइट मनी फॉर एग्जांपल इफ यू सपोज कार वाशिंग यूएस रे ये कांसेप्ट अच्छी इंडिया रे भी एबे स्टार्ट हलानी कार वाशिंग शॉप एबे डेली कार वाशिंग शॉप रे केतेटा कार आछी कि बसी ताको हिसाब करूची कि तो आमे सपोज हमर ब्लैक मनी अच्छी वी विल सेट अप ए कार वाशिंग शॉप एंड आमे कहबो कि आज एक्चुअली सपोज 10टा कार आछी तो मे बी 500 चार्ज करथिले ईच पर्सन को आमे 5,000 रुपीस पाई थांदु बट एक्चुअली हमको 50,000 और मे बी 1 लाख रुपीस हम पाखरे ब्लैक मनी अच्छी तो आमे कहया कि आमे आउ भी 1 लाख अर्न करिचु बाय 100 कार्स ओके और व्हाटएवर अमाउंट सो दिस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड एज एक्स्ट्रा पेमेंट हु इज गोइंग टू चेक कि केतेटा कार आछी बोली सो आमे स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू रे आमे आमर ब्लैक मनी को एथरे ऐड कर देलु एक्चुअली किछि व्हाइट मनी भी आछी बट ब्लैक मनी मेजर होची ब्लैक मनी एटा मिसी की व्हाइट मनी हे गेला सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ how to launder or how to convert your black money into white money okay and finally one last method that we are going to see today is current or new technology through रे केमती मनी लॉन्डर होची एबे गोटे नुआ मेथड आछि क्रिप्टोकरेंसी रो पॉइंट हला कि दिस इज अनरेगुलेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड एंड एनोनिमस सो जमती ऑलमोस्ट एवरी लीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रे यू हैव योर सेंट्रल बैंक रो अथॉरिटी अच्छी से चेक कर परिवे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ भितर होची बट क्रिप्टोकरेंसी फॉर एग्जांपल बिटकॉइन और डोजीकॉइन दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाउ which do not come under any central bank आरबीआई किंबा कोनोसी कंट्री रो सेंट्रल बैंक माने याको कंट्रोल करि पार नाहंदी करि परिवे ही नहीं सेटा एमितिया सेटअप हिच सो ऑब्वियसली वी कैन यूज दिस टू लॉन्डर ब्लैक मनी आमर सपोज किछि भी पेमेंट करियार अछि इलीगल एक्टिविटी पई वी विल पे इट थ्रू क्रिप्टोकरेंसी okay we will send this money directly through crypto to the crypto account of the person that provided us any goods or services so these are the different methods through which we can do money laundering these are for you to understand how money laundering is done so that you can stop them okay and in next session we will take up how to address money laundering and what are the different steps taken from them